بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری تیسری نشست ہے جو کہ ہم ملحدین اتحاد اور زندیق کے رد کے اوپر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ پچھلے نشستوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس اللہ کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں در حقیقت یہ اس اللہ کا علم ہی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ اللہ کا جو انہوں نے سوالات کیے ہیں ان سے کیے ہیں، ان فلاسفر سے کیے جو یونان سے یا ایسے علاقوں سے ہیں جو پہلے سے ہمیشہ سے اللہ کے انکاری رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ کے ہونے پہ انکار کیا، لیکن جب یہ میڈیا عام ہوا ان کی باتیں پہنچی تو اس لیے کچے ذہن جو کہ اپنے ہی دین سے لاعلم تھے انہوں نے ان کی باتوں کو سننا شروع کیا، اور پھر انگریزی سیکھی، فلسفہ سیکھا، سب کچھ سیکھا، پر نہیں سیکھا تو عربی نہیں سیکھی، چلو عربی نہ سیکھی، جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں کاش ان ترجموں کو پڑھتے اور حقیقت میں یہ سوال ان سے کرتے جن کو قرآن نے راسخون فی علم کہا، جن کو قرآن نے عالم العلم کتاب کہا، اس کے بعد نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرے عبرت، جب تک ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جو پوچھا ان سے پوچھا جن کو خود بھی معلوم نہیں تھا، جو خود بھٹکے ہوئے تھے اور نہ ملنے کی صورت میں وہ انکار کر چکے تھے اللہ کا، تو ان لوگوں نے انہی سے جا کر اللہ کے متعلق سوال کرنا شروع کیا۔ لہٰذا جس چیز کے انکاری تھے اس وجہ سے اپنے لاعلمی وجہ سے انکاری تھے۔ پچھلے دو نشستوں میں بتا آیا ہوں کہ جناب مفضل نے جو امام سید صاحب سے علم حاصل کیا، اس بارے میں سوال کیے، الہاد کے بارے میں، ملحدین کے بارے میں، تو ان کے اوپر یہ پوری کتاب ہے، 3 سے 4 جلدوں پر ہے، توحید مفضل کے نام سے، اس سے میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ تو آج جو ہے وہ اعضاء کے بارے میں ہے، کیونکہ جو ملحدین ہیں ایتھسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جسم خود بنا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے تحت یہ بدلتا رہا ہے اور اس میں تبدیلی آتی رہی ہے اور بہتر سے بہتر ہوتا گیا ہے، یا جو بھی ہو، کیونکہ یہ بھی خواب خیالی ہے، غلط باتیں ہیں۔ تو کیسے ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اب خود مولا کا فرمان پڑھیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں۔ امام جیسا صاحب نے مفضل ابن عمر سے فرمایا، مفضل ذرا غور تو کرو، انسانی جسم کے اعضاء کیوں بنائے گا، ان کی ضرورت کیا تھی، اور یہ اعضاء کیا خدمات سے انجام دیتے ہیں، ان اعضاء کو بنانے میں، ہر عضو کا خاص مقام پر پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے، اور انسانوں کے لیے اس میں کس قدر آسانیاں اور سہولتیں موجود ہیں، کیا زمانہ، مادہ یا فطرت، نیچر میں یہ شعور ہے کہ خاص منصوبہ بندی کے ساتھ اس انسانی جسم کی تعمیر کر سکے۔ اچھا دیکھو، 2 ہاتھ کام کرنے کے لیے ہیں، دونوں پاؤں چلنے کے لیے انسانوں کو دیے گئے ہیں، آنکھیں راہ دیکھنے کے لیے ہیں، منہ غذا کھانے کے غرض سے، معدہ اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے دیا گیا، جگر غذا کا جوہر نکالنے کے واسطے، اعضائے تولید افزائش نسل کے لیے عطا کیے گئے، اور جیسے وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اب اگر تم اعضاء، ان کی بناوٹ، کارکردگی، جسم کے اندر ان کے مقام پر غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ ہر عضو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اور جسم کے ہر عضو کا دوسرے عضو سے ایک خاص رشتہ رابطہ ہے، یہ تمام عضو مل کر انسانی جسم کی تشکیل کرتے ہیں اور انسان کو وہ تمام سہولتیں فراہم کرتے ہیں جس کی اس زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔ کس قدر جو ہے وہ ہمیں جو ضرورت ہے اور وہ کس قدر اس کو بنائی گئی ہے، اس کی آپ سادہ سی مثال دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ ہیں جو ہمیں پیدائشی طور پر فری مل جاتے ہیں، مفت مانگے مل جاتے ہیں، بغیر مانگے ملے ہیں، ہمیں قدر تب ہوتی ہے جب اگر جن سے کوئی مسئلہ ہو یا ایسے لوگوں سے ملے جن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ اللہ کی صنعت کی صناعی کا عظیم نمونہ ہے اور بے مثال ٹیکنالوجی کا عظیم شاہکار ہے۔ ہمارے ہاتھ ہڈیوں، جوڑوں، بافتوں
पट्टियों डोरियों का मजमूआ है और ये जो है दिमाग के साथ मुंसलिक है, यानी दिमाग और ये आपस में इकट्ठे हैं और इनकी आपस में जो रब्त है वो भी बाकमाल है। दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो कुछ हमने बनाया, जिस कदर हमने जहाज बनाए, कंप्यूटर बनाए, हमने मोबाइल्स बनाए, हमने इमारतें खड़ी की, हमने बिल्डिंगें बनाई, हमने जो कुछ भी किया, ये सब इन्हीं हाथों के करिश्मे है। और इन हाथों का करिश्मा तब है जब ये दिमाग के साथ बिल्कुल दुरुस्त मुंसलिक हो और सही काम कर रहे हैं। तो इमाम ने फरमाया कि दिमाग के अंदर दो हाथों का काम सुधार करो के लिए उनकी निगरानी के लिए दो बड़ी जगह मखसूस दिमाग के अंदर, जिन्हें हम मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर आप एक अंगूठे को जरा सा ऐसे हिलाते हैं, जैसे अंगूठे को बड़ा आसान सा हिलाना है, लेकिन इसको हिलाने के लिए ये सारा निजाम जो दिमाग, इससे हमारा पीछे हराम मगज जो हमारी रीढ़ की हड्डी में, वहां से फिर दिमाग के साथ मुंसलिक है। इसके अंदर बहुत तेजी से बरकी जो है सिग्नल जो है वो सफर कर रहे हैं और ये बहुत ही हैरान कुन निजाम कि हमारा सिर्फ एक अंगूठा हिलाता है। अंगूठे का अगर हम ये पोर भी हिलाते हैं, इसके लिए भी पूरे सिग्नल चलते हैं। फिर खाली यही भी निजाम नहीं है, हमारे अंदर एक ऐसा निजाम भी है कि अगर हमारे किस चीज़ से हम छूते हैं, गर्म चीज़ से या लोकल चीज़ से, तो उसमें मोटर जो है, मोटर न्यूरॉन होते हैं, जिसमें इतनी खासियत होती है कि वो फौरन फैसला करते हैं, पर इसमें वो इंतज़ार करें कि दिमाग से हमें क्या हुक्म आता है। इस तरह आपने देखा होगा, जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो अभी आपको महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन हाथ फौरन पीछे आ गया, या किसी नुकीली चीज़ से आपका हाथ टच किया, अब हाथ फौरन पीछे कर लिया, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने डबल डबल हमें निज़ाम दिए हुए हैं। एक खुदकार निज़ाम है जो फौरन अमल रिएक्ट करता है, और एक वो निज़ाम है जो हमारे दिमाग से कंट्रोल। आप ये देख रहे हैं कि 40-45 साल के अरसे में हम सिर्फ उंगलियों के खोलने और बंद करने का जो अमल करते हैं वो कम से कम 25 करोड़ मरतबा दोहराते हैं। यानी 40-45 साल की उम्र की जो हमारी है, उसमें हम ये अपने उंगलियों को जो हम खोलते बंद करते हैं हम रूटीन की लाइफ में, तकरीबन 25 करोड़ मरतबा है। और इतनी दफ़ा करने के बाद भी हमारे जोड़ सही काम करते हैं। एक हाथ की कलाई में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, 5 हड्डियां पंजे में और 14 हड्डियां उंगलियों के जोड़ में होती हैं। अगर दोनों हाथों की हड्डियों को जमा कर लिया जाए तो ये कुल 54 हड्डियां होती है, यानी तमाम जिसम की कुल हड्डियों की 1/4 हड्डियां से हमारे दोनों हाथ हुए, कलाई में ये पंजा और ये उंगली। हाथों की जिल्द में असाब का बहुत बड़ा नेटवर्क पाया जाता है, जिसके जरिए इंसान गर्मी, सर्दी, नरमी, सख्ती, दर्द, राहत सब महसूस करता है। उंगली और हथेली की खास जिल्द होती है। और देख लें खाली फिंगरप्रिंट्स अगर आप देखें, ये किस कदर कमाल की, ये आपकी शिनाख्त है। अगर दो जुआ बंदे भी हों, उनके भी ये मुख्तलिफ होंगे। और ये देख रहे हैं, ये जो निशान होते हैं ये आपके वक्त के साथ साथ रहते हैं, इसमें तब्दीली नहीं आती। और ये किस कदर एक अजीम आपको एक निमत मिली हुई है जो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही आज के दौर में लाजिम है। बायोमेट्रिक्स के नाम पे आपने अक्सर आप बैंकों में जाए, जहाँ भी जाए, ये बहुत लाजिम है। खाली ये नहीं, आप उंगलियों की बनावट देखिए, इसे हम कलम पकड़ते हैं, सुई के लिए भी हम इसी से काम करते हैं, स्क्रू ड्राइवर में हम इसी से हम काम करते हैं, इसी हाथों से हम न जाने कितने औजार हम काम करते हैं। और हमें जब गाड़ी चलानी है तो हम इसी हाथों से चलाते हैं, हमने व्हील चेयर चलानी है तो हमें इसी हाथों से चलानी होती है, हमने साइकिल चलानी है तो इसी हाथों से चलानी है, हमने मोटरसाइकिल की रेस देनी है तो इसी हाथों से देते हैं। यानी कि ये एक हाथ जो है हमारे कितने सारे काम करते हैं। हमने कप पकड़ना है तो इन्हीं हाथों से पकड़ना है, हमने रोटी तोड़नी है तो इन्हीं हाथों से तोड़नी है, हमने अगर बंदूक चलानी है तो इसी हाथों से, तलवार चलानी है तो इन्हीं हाथों से। यानी कि एक हाथ उसके इतने काम, और फिर सारे के सारे दिमाग से मुंसलिक, और वो सब कर रहा है। ये तो अब हाथ में बताया आपको किस कदर हाथ में पेचीदगी है, किस कदर इसके अंदर अल्लाह ताला ने किस कदर इसमें खसूसियत रखी है। अब पाँव को देख लो, तो जो सिर्फ पाँव है वो एक ऐसा शाहकार है कि दोनों पाँव एक इंतहाई और तेज मशीन है, और दिमाग के कमाल मुताबिक हमारे लिए हैरान कुन काम सर अंजाम देते हैं। सिर्फ आप खड़े होते हैं उस वक्त आपके जहन में पैरों का तस्वुर नहीं होता, लेकिन उस वक्त भी ये पाँव दिमाग के मुताबिक हर लम्हे के लिए अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हर पाँव अपनी 26 हड्डियों, 107 लिगामेंट्स झिल्लियाँ होती हैं जो उनको
जो को प्रपेटी होती है, इन्हें पट्टियों भी कहते हैं। और 19 पट्टों के जरिए पुरस्कार पेचीदा अमल और रद्द अमल के जरिए दिमाग को लंबा लंबा सैकड़ों पैगाम इरसाल कर रहा हो। फिर उसकी जंग से आने वाले के बाद 150 पौंड वजनी और 5.5 फुट लंबे जिस्म के तवाजुन को सिर्फ 7-8 इंच के मुख्तसर से जगह पर संभाले रहते हैं। और इसमें भी अल्लाह ताला ने ऐसे निज़ाम रखा हुआ है कि इसमें भी ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो खुद फैसला करने के काबिल होते हैं। जैसे अगर आपका किसी लोकल चीज़ को पाँव आता है तो फौरन पाँव हटा लेते हैं और दर्द का एहसास बाद में होता है। ये अल्लाह ताला ने ना सारा सिर्फ ये कि इस पाँव को खुदकार भी रखा है और साथ साथ दिमाग से भी मुंसलिक है। आपके चलने, खड़े होने, बैठने, आपको पूरा तवाज़ुन काम करने के लिए ये बहुत ही अहम चीज़ है। और अगर आप इसको अगर मज़ीद आप पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि किस कदर पेचीदा तरीन अमल है कि किस तरह पट्टे, उनकी बनावट, उनकी बाफ्तों के साथ, उनकी हड्डियों के साथ अटैचमेंट और बहुत ज़बरदस्त एक कुदरत का शाहकार है, खुद ब खुद नामुमकिन। इसी तरह जो हमारे अंदर ग्लैंड्स हैं, जो हमारे अंदर एक खास पेचीदा अमल करते हैं, जिस तवानाई दरकार होती है वो करते हैं। जो पैर है तो वसत निज़ाम दिमाग में मौजूद एक मकाम है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं, कि उससे मुंसलिक होता है। और इसके साथ एक मास्टर ग्लैंड जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उस वजह से आगाह करता है। मास्टर ग्लैंड खून में एक हार्मोन शामिल करने लगता है जो बराह रास्त आपकी गर्दन पर मौजूद जिस्म की तवानाई घर ये थायराइड ग्लैंड को मौसूल होता है। और ये ग्लैंड मदूद जो है और रद्द अमल अपना एक हार्मोन खून में शामिल कर देता है। ये हार्मोन जिस्म के 100 ट्रिलियन खुलियों में मौजूद तवानाई घरों को, जिनसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो लोग बायो पढ़ते हैं, अमीबा पढ़ा हो तो अमीबा के अंदर वो तो कायदा आपको देखा होगा। और ये हर खुली के अंदर मौजूद होता है जो कि तवानाई का असल मरकज होता है। इस तरह पैरों के मुताबिक तवानाई सेकंड के हज़ारवें हिस्से फराहम होती है। हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं तो हम कभी अल्लाह ताला की नेमतों का समझ नहीं कर सकते जो उसका बनाया हुआ जिस्म निज़ाम जो है हमारे इंसान को एक तवाज़ुन के साथ खड़ा होने के लिए वो उसे दिया हुआ है। तो यहीं पे सवाल किया था मुफज्जल ने, तुम्हारे बात सुनकर मुफज्जल ने ये अर्ज किया, आका कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सब बातें तबीयत या नेचर के साथ पैदा होती है। ये सब बातें नेचर के साथ पैदा होती है, जिन्हें जिस मखलूक को जिस तरह आजाद होती है वो खुद बन जाते हैं। इमाम ने फरमाया मुफज्जल ऐसे लोगों से सवाल किया जाए कि तबीयत इस कदर अजीम व बामसलहत काम इस कदर बारीक बीनी से सरंजाम देती है तो क्या वो इल्म, इरादा और कुदरत रखती है? क्या वो बेशऊर बेइदराक है और इसमें कुव्वत है ना इल्म? अब अगर वो कहते हैं कि इसमें इल्म, इरादा और कुदरत है तो फिर उन्हें खल्क करने वाली ज़ात अल्लाह को मानने से क्या चीज़ रोकती है? अगर ये अल्लाह का इनकार करने वाले कहते हैं कि तबीयत बेइल्म, बेइरादा, बेकुदरत है और बगैर किसी इल्म और कुदरत की चीज़ों को बनाती है, तो ये अमर महाल है कि बेअकल, बेइरादा, बेकुदरत शय इस कदर इल्म व हिकमत, मसलहत और बारीक बीनी के साथ किसी साहिब शऊर इदराक शय का तखय्युल कर सके। मुफज्जल देखो, असल बात ये है ये तमाम मखलूक़ात अल्लाह रब्बे करीम पैदा करता है और जिसे ये लोग तबीयत नेचर कहते हैं, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है जिसे उसने मखलूक़ात में जारी कर दिया है। यानी ये एक निज़ाम है और मैं इंशाअल्लाह आने वाले अपनी लाइफ सेशन के अंदर इस निज़ाम पर बात करेंगे कि असल में हमें इस निज़ाम को समझना था। हमने हर चीज़ को अगर हम निज़ाम समझ जाते हैं तो हम हर चीज़ को वाज़ेह बयान कर सकते हैं, जिसके अंदर इंसान को मतलब जो सवालात उठते हैं अल्लाह के बारे में, ये बारिश कैसे बरसती है, इंसान तो बल पैदा हो रहा है ना, इसका कैसे खल्क होता है, फिर ये शिर्क क्या है, फिर शिर्क की सिफात क्या है, ये सारा कुछ ये है। अगर हम एक मेन चीज़ हम अगर निज़ाम समझने शुरू कर दें कि निज़ाम क्या है
نظام کس طرح ہے، کس طرح کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح نظام کے اوپر جو ہے اپنا وہ قادر ہے، کس طرح اس نظام کے اندر پوری قدرت رکھتا ہے، تو جب چاہے جس چاہے نظام بن سکتا ہے، نظام میں بدلاؤ لا سکتا ہے، اور جو بھی ایسے کام ہوتے ہیں وہ کس طرح معجزہ کہلاتے ہیں، یہ سب ہم بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ سسٹم میں ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ فی الحال ہم نے جسم پہ بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس اگلی نشست میں اس سے مزید ہم اس جسم کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس جسم کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جسم خود بنا ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید بات کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔